ایوان صدر میں اعزازات دینے کی تقریب صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء کی تقریب میں شرکت۔ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہے، وسائل کے ضیاع کو روکنا ہوگا۔ تنازعات اور جنگوں سے دنیا کے وسائل تباہ ہوئے، دنیا کی ترجیحات انسانیت کی فلاح ہونی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا پائیدار ترقی سے متعلق ایس ڈی پی آئی کانفرنس سے خطاب۔ جمہوری نظام اور روایات کے تسلسل سے ہی پائیدار ترقی ممکن ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے عوام پر مبنی جمہوریت کے لیے کوشاں رہا ہے۔ مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا انڈونیشیا میں 15ویں باہری جمہوری فورم سے خطاب۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی انڈونیشیا اور بوسنیا ہرزیگوینا کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ انڈونیشین ہم منصب کے ساتھ مشترکہ وزارتی کمیشن کے قیام کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے پولنگ جاری۔ 3 اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ 1070 نشستوں پر 4247 امیدوار مد مقابل۔ سارک ممالک آج 38واں سارک چارٹر ڈے منا رہے ہیں۔ یہ دن جنوبی ایشیائی ملکوں کے درمیان علاقائی ترقی، روابط، تعاون کے وسیع امکانات کی یاد دہانی ہے۔ سارک ممالک کے عوام ان مواقع پر محروم ہیں۔ پاکستان سارک کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ سندھ کے مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد۔ ریلیوں میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ 6 سال بعد سعودی عرب کا سرکاری دورہ کرنے اور پہلے چینی عرب سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے پر بہت خوشی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی اور علاقائی امور پر قریبی رابطے اور ہم آہنگی ہے۔ چین سعودی تعلقات کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ریاض پہنچنے کے بعد چینی صدر شی جن پنگ کی گفتگو۔ ایٹمی جنگ کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم روس ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہیں کرے گا۔ یوکرین میں ایک طویل جنگ دیکھ رہے ہیں، لیکن فی الحال مزید فوجی متحرک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کرملن میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں پہلی بار خاتون نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا۔ صدر کاسٹیلو کو عہدے سے ہٹانے کے بعد ڈیانا بولوارتے صدر بنی۔ ڈیانا بولوارتے اس سے قبل ملک کی نائب صدر کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایوان صدر میں اعزاز دینے کی پروقار تقریب ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کو اعزازات دیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ صدر مملکت نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری دیا۔ صدر مملکت نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کو نشان امتیاز ملٹری دیا۔ تقریب میں چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، وفاقی وزراء، ارکان اسمبلی اور پاک فضائیہ کے سربراہ سمیت اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ تنازعات اور جنگوں سے دنیا کے وسائل تباہ ہوئے، ہماری ترجیح انسانیت کی فلاح ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں ادارہ برائے پائیدار ترقی کی سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہے، وسائل کے ضیاع کو روکنا اور خواہشات پر قابو پانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی ترقی اور روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایک ہے میٹیگیشن اور دوسرے ہے ایڈیپٹیشن۔
एडेप्टेशन की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस वेस्ट, एक। दूसरे, अपनी वांट्स को कम करें। ये जो आपके और मेरे जहन में कंफ्यूजन डाल दिया है कैपिटलिज्म और ग्रीड ने कि जी आपकी वांट्स ज़रूरियात बन गई, नीड्स बन गई, क्रिएट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। एंड द लास्ट इज स्ट्राइव टुवर्ड्स अ हैप्पी फ्यूचर विद लव फॉर ऑल क्रिएशंस। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दौलत के हुसूल और लालच के बाइस वसाइल का ज़िया हो रहा है। दुनिया को वबाई अमराज और आलमी हिद्दत जैसे मसाइल का सामना है। ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाना होगा। बढ़ती हुई आबादी एक और बड़ा मसला है। वक्त का तकाजा है कि इसका गैर रिवायती हल तलाश किया जाए। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंडोनेशिया में 15वीं बाली जमहूरी फ़ोरम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जमहूरी निज़ाम और रिवायात के तसलसल से पायदार तरक्की मुमकिन है। उनका मजीद कहना था कि हमें माली वसाइल की बेहतर और मुनसिफाना तकसीम के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि जमहूरियत एक आज़ाद माशरे की बुनियाद है और पाकिस्तान हमेशा से अवाम पर मबनी जमहूरियत के लिए कोशा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाली में इंडोनेशिया के अपने हम मनसब रेतोना मारसोती से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के क़याम के बारे में एक मफ़ाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए, जिसके क़याम से दोनों ममालिक के माबैन मसरूफियात और ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाली में बोस्निया हर्ज़ेगोविना के अपने हम मनसब डॉक्टर बसीरा तुर्कवेक से भी मुलाकात की और आला सतह के तबादलों, तिजारत और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की वसअत को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा कराते हुए कहा कि वो कीनिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से मामले की तफ्तीश और शवाहिद के हुसूल के लिए राबते में है। वज़ीर आज़म ने भी कीनिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता करके तफ्तीश में मुआवनत की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान में कीनिया के हाई कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि शवाहिद जमा करने और तफ्तीश का अमल जारी है। जवाब में कहा गया कि दफ्तर ख़ारजा कीनिया के हुक्काम के सामने मामला उठाने के लिए खुसूसी वफ्द भेजने पर गौर कर रहा है। अरशद शरीफ कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान की कीनिया से पाकिस्तान मुंतकली की भी गौर किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात से शवाहिद जमा करने और कानूनी मुआवनत के लिए वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त भेज दी गई है। वज़ारत ख़ारजा ने अपने जवाब में कहा कि इनकी जानिब से स्पेशल JIT के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया, जहां उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों, सिक्योरिटी समेत फॉर्मेशन से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को अंदरूनी सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए पाक फौज की मुआवनत के बारे में भी आगाह किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। सखर, मीरपुर माथिलो समेत सिंध के दीगर शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने पाक फौज पर इल्जाम तराशी की शदीद मजम्मत की। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग के अमल को शुरू हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे मीरपुर और कोटली से मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है और मौसम के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है। इस वक्त बिलाल चौधरी मीरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बिलाल, बताएगा मीरपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, मीरपुर में इस वक्त जो है सूरत हाल बड़ी अच्छी किस्म की जो है वो हो रही है। पोलिंग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है
اور جو امن و امان کے حوالے سے بات کریں تو رینجرز کے بھی یہاں جوان جو ہیں وہ تعینات ہیں، اور جو 3000 فورس ہے جو ضلع میرپور کے لیے صرف پولیس فورس جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے. اور یہاں موسم کے لحاظ سے بات کریں تو موسم بالکل اتنا خوشگوار ہے، اور پولنگ بھی جو ہے وہ تقریباً اتنا ٹرن آؤٹ نظر نہیں آ رہا اس بار میرپور میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. تو یہ تقریباً جو میرپور ڈویژن کی بات کریں تو اس میں 12,32,000 ووٹر جو ہیں وہ آج حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے، جس میں ضلع میرپور سے تقریباً 3,66,043، جبکہ ضلع کوٹلی سے 5,63,016 اور بمبر میں 3,30,020 ووٹر جو ہیں وہ ابھی ووٹ پول کریں گے. لیکن جو ٹرن آؤٹ ہے اس موسم کی خرابی بھی نہیں کہہ سکتے آپ، موسم بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے 45% یا 50% نظر آ رہا ہے. اور یہاں بات کریں جو پولنگ اسٹیشنز ہیں میرپور ڈویژن میں، وہ تقریباً 2201 پولنگ اسٹیشن ہیں، اور کوٹلی میں جو ہے وہ 1045 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جن پہ مسلسل جو ہے وہ پولنگ جاری ہے. اور امن و امان کے حوالے سے بھی بہت بہترین جو ہے وہ رینجرز نے سیکیورٹی بھی کے اور بھی پولیس نے سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں. میرپور سے بلال چودھری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب کوٹلی سے مبشر چودھری سے ہم اپڈیٹس لیں گے. مبشر بتائیے گا وہاں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، آزاد کشمیر کا جو بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل ہے یہ جاری ہے. اس کو صبح 8 بجے جاری ہونے والا پولنگ کا جو عمل 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد جو ہے بالکل پرامن طریقے سے جاری ہے. ووٹرز کی اگر بات کی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ووٹرز کی بڑی تعداد جو ہے پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہی ہے. خاص کر خواتین ووٹرز کی ایک بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پر آ رہی ہے، ووٹ کاسٹ کر رہی ہے. ہماری کچھ ووٹرز سے بات ہوئی. ووٹرز کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسپیشلی باہر کے ممالک یعنی کہ اوورسیز ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے، اور اس اقدام کو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں. ہماری ایک ووٹر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی وہ اسپیشلی یو کے سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے، اور یو کے میں جو لوکل باڈیز کا سیٹ اپ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اور پاکستان اسپیشلی آزاد کشمیر میں یہ گورنمنٹ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے اس سے لوگوں کے مسائل اقتدار نچلی سطح پہ منتقل ہوگا، عوام کی جو ہے اپنے نمائندے سے ایکسیس ہوگی. سیکورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل ہیں. مکمل جو ہے ایس ایس پی کوٹلی اور جتنے بھی جو ہے ڈپٹی کمشنر کوٹلی، جتنے بھی انتظامیہ آفیسران ہیں، مجسٹریٹ ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں، وہ لگاتار پولنگ اسٹیشن پر سرکولیشن کیے ہوئے ہیں. جو ہے جو کوئک رسپانس فورس ہے وہ الرٹ پہ موجود ہے. ہر طرح کے جو ہے انتظامات مکمل ہیں. تاہم اب سے کچھ دیر پہلے کچھ پولنگ اسٹیشن پر ہلکی پھلکی ہنگامہ آرائی ہوئی. اس کے بعد پولنگ اسٹیشن پر جو پولنگ کا عمل تھا اس کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا. تاہم رینجرز اور پولیس نے فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے جو ہے حالات کنٹرول کر لیے، اور عمل جو ہے پولنگ کا عمل ابھی جاری. اب تقریباً کوٹلی کے 1000 سے زائد پولنگ اسٹیشن پر بلا تعطل پولنگ کا عمل جاری ہے. جی سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل ہیں. صبح 8 بجے کے بعد سے ابھی تک پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل جاری ہے. خواتین کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہے. بہت شکریہ مبشر چودھری، آپ کوٹلی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دیگر 60 ممالک آج 38واں سارک چارٹر ڈے منا رہے ہیں. 1985 میں آج ہی کے دن ڈھاکہ میں پہلے سارک سربراہ اجلاس کے موقع پر جنوبی ایشیا کے 7 ممالک مالدیپ، بھارت، بھوٹان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے رہنماؤں نے سارک کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. اس تنظیم کے قیام کا مقصد امن، استحکام، ہم آہنگی اور اس خطے کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا تھا. اس کے علاوہ خود مختاری اور برابری کے اصولوں، علاقائی سالمیت، قومی آزادی، طاقت کا استعمال نہ کرنا اور تمام مسائل کا حل ڈھونڈنا بھی اس تنظیم کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سارک چارٹر ڈے جنوبی ایشیائی ملکوں کے درمیان علاقائی ترقی کی غیر استعمال شدہ صلاحیت، روابط، تعاون کے وسیع امکانات کی یاد دہانی کراتا ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ سارک ممالک کے عوام ان مواقع سے محروم رہے ہیں. پاکستان سارک کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے.
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा 11 और 12 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे और आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगे। वजारत खारजा में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कि 2 दिसंबर को पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के बारे में अफगान उबूरी हुकूमत से राबते में हैं। इस हमले में मुलव्विस किरदारों और गिरोह के खिलाफ मिसाली कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान का मजीद कहना था कि अमरीका की जानिब से भारत को मजहबी आज़ादियों की फहरिस्त में शामिल ना करके इम्तियाजी सलूक किया गया। अमरीकी कमीशन की सिफारिश के बावजूद भारत को फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने तवील अरसे तक दहशतगर्दी का सामना किया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई महफूज पनागाहें नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान में भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है। आलमी बिरादरी भारतीय रियासती दहशत का नोटिस ले। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। काबिज फौज कश्मीरियों की आवाज़ बंद करने के लिए मीडिया पर भी दबाव बढ़ा रही है। जिला इस्लामाबाद से अवामी और सियासी मसाइल रिपोर्ट करने वाले सीनियर सहाफ़ी खालिद गुल को काले क़वानीन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस लें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की बदनामी ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि मोदी हुकूमत ने कश्मीरी आवाम से तमाम बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी का बेड़ा उठाने वाले कश्मीरी नौजवान भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत हिमाचल प्रदेश के रियासती इंतखाबात में कांग्रेस आगे है, जबकि गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की रियासती असम्बली की कुल 68 नशिस्तों में कांग्रेस पार्टी 39 और बीजेपी 26 नशिस्तों पर आगे है, जबकि गुजरात की रियासती असम्बली के इंतखाबात में बीजेपी 155 नशिस्तों पर जबकि कांग्रेस 17 नशिस्तों पर आगे है। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत दिल्ली के बल्दियाती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने वज़ीर आज़म मोदी की जमात का सफाया कर दिया है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने कुल 250 सीटों में से 134 जीत ली हैं, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस को महज 8 नशिस्तें मिली हैं। और चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि 6 साल बाद दोबारा सऊदी अरब का सरकारी दौरा करने और खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की दावत पर पहले चीनी अरब सरबराही इजलास में शिरकत करने पर बहुत खुशी हो रही है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंचने के बाद चीनी सदर ने कहा कि चीन और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती, शराकतदारी और भाईचारे का गहरा रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर में करीबी राबते और हम आहंगी है। उन्होंने कहा कि हम चीन सऊदी ताल्लुकात की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। रूस के सदारती महल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में एजेंडे के मौज़ूआत और पेट्रोल मार्केट के हालात पर गौर किया गया। उन्होंने पेट्रोल बरामद कुनंदगान की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस की कार्रवाइयों को मस्बत करार दिया। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि ओपेक प्लस की कारकर्दगी ने आलमी पेट्रोल मार्केट में इस्तेहकाम पैदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने बाज़ मगरबी ममालिक की तरफ से रूसी पेट्रोल की कीमत मुकर्रर करने समेत लॉजिस्टिक, तवानाई और इक्तसादी शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने जिस तरीके से भी बनाई, पहले बोजदार को लाके बनाई, फिर बाद में किसी और की बैसाखी लेकर बनाई, जिसको वो ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। सुनने में ही आ रहा है, एक तरफ पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में मैं पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, साथ साथ में जो है वो मजीद वज़रा से भी हलफ उठवा रहे हैं। तो मुझे ये तो समझ में नहीं आती कि ये या तो वो झूठ है या वो जो वज़ीर बन रहे हैं उन बेचारों को बोला गया कि तुम्हें यार चलो 1 महीने के लिए वज़ीर बन जाओ या 15 दिन के लिए वज़ीर बन जाओ। तो 15-15 दिन के लिए भी लोग वजारतें लेने के लिए वहाँ पे बेताब है पंजाब हुकूमत में। जब आपको पता है कि आपकी हुकूमत जानी तो 15 दिन में आके उसने क्या महकमा है कि ब्रीफिंग लेनी है, क्या महकमा संभालना है, सिर्फ घर अपने नाम के ऊपर टाइटल लगाना है एक्स मिनिस्टर का। तो ये तो इस वक्त पंजाब में सियासत इस तरह की हो रही है कि पंजाब हुकूमत लोगों को ये भी बता रही है कि जी हम हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं, असम्बली ख़त्म करने जा रहे हैं और साथ में
कैबिनेट में भी इजाफा किया जा रहा है, जहाँ पे आटे के रेट उनसे नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त वहाँ पे बहुत बुरी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे टीवी चैनल पे हमने खुद देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी हर एक को भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। हर कारोबारी शख्स जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो उन क्रिमिनल्स के जद में है कि उनको भत्ता भी देना है अगर कारोबार करना है। किडनैपिंग सबसे ज़्यादा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रही है। स्ट्रीट क्राइम कराची पे इल्ज़ाम आते हैं, उसको हम लोग जो भी बेहतरी कर रहे हैं हम बात भी करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा इस वक्त आप देखेंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा आ रहा है। बच्चों के अगवा की और बच्चों के मर्डर की जो बच्चों के साथ जातियों की खबरें सबसे ज़्यादा आपको पंजाब से नज़र आएंगी। तो जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है वो पीटीआई की हुकूमत वहाँ पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, आवाम को रिलीफ फराम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, और सिर्फ गोगियों के कहने पे जो है वो मज़ीद लोगों को वजारत दी जा रही हैं। 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे वजारत दी जा रही हैं क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं। हमने जो हमारे सैलाब की जो बहस हम कर रहे हैं ताकि लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी सिंध में इस वक्त हालात जो है वो सैलाब के साथ एक तारीखी नुकसान हुआ है, उसमें जिस तरह हुकूमत सिंध आगे जाके बढ़ चढ़ कर उन सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही है। हर किसान को जिसने गंदम उगानी है 5,000 रुपये पर एकड़ उसको सिंध हुकूमत दे रही है। हर उस शख्स को जिसका घर टूटा है, डैमेज हुआ, उसको सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। ये है पीपल्स पार्टी और आवाम की सिंध हुकूमत। जबकि जो चंदे जिन लोगों ने जमा किए उन लोगों ने एक तो जो सैलाब ज़दगान का जो कॉज था उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करवाया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की आड़ में, असेंबली तोड़ने के ड्रामे की आड़ में पूरी कवरेज को, पूरे लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी साहिब हैसियत लोग होते वो सब बढ़ चढ़ कर मजीद आगे आते। कुछ लोग आए, लेकिन जिन लोगों को हम लोग इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत हाल पोर्ट्रे करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आए, इन सैलाब मुतासरीन की वापस ज़िंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत की आड़ में किया। सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया, और जो पैसे चंदे के मिले उसको, जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। वो पैसे सारे के सारे सोशल मीडिया पे, इश्तिहारों पे, डिजिटल मीडिया पे, इश्तिहारों पे सारे वो पैसे उड़ाए गए। और उन पैसों से जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए लोगों ने अगर दिए थे पैसे, तो वो उसने इस तरह ज़ाय कर दिए। तो इस वक्त इस फ्रॉन जो है, जो इस मुल्क पे इस वक्त काबिज़ है, एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास के ज़रिए काबिज़ है, झूठे तरीके से काबिज़ है, ये इस मुल्क की तारीख में इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कभी नहीं हुई। उसके साथ भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो बाकायदा लोग परेशान हैं, इसमें हम मानते हैं लोग परेशान हैं, लेकिन इस नहज तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मईशत का, वो इमरान खान न्याजी है। उसके इंटरव्यूज़ में जब अब आप देख रहे हैं तजाद जो आ रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हमसे ये गलती हो गई कि हम IMF के पास लेट गए। ये कह देना किसी हुक्मरान के लिए कि मुझसे गलती हो गई, या मैं चूंकि उस वक्त मैं अपना पुराना पॉलिटिकल स्टांस फेस सेविंग के लिए सोच रहा था कि मैं तो कहता था जलसों में IMF के पास जाऊंगा नहीं, और फिर मैंने जब इक़्तिदार मिला तो मुझे फौरी जाना चाहिए था ताकि हालात कुछ बेहतर होते। उसने जो अपनी ईगो के चक्कर में जो टाइम वेस्ट किया, उसके ज़रिए आज दिन तक मुल्क की मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को, जिनको मुल्क की मफाद से ज़्यादा ज़ाती मफाद ज़्यादा अजीज़ हों, क्या इस मुल्क में सियासत करने का कोई इख्तियार है? क्या ऐसे लोगों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि ये मुल्क में सियासत करें और मुल्क में पूरी कौम को दाव पे लगा दें, पूरी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, पूरी कौम के स्टेक, पूरी मईशत के स्टेक दाव पे लगा दें सिर्फ अपनी सियासत की आड़ में? वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग पंजाब हुकूमतें वजारतें लेने के लिए बेताब हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जराइम में इजाफा हो रहा है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की बढ़ चढ़ कर मदद कर रही है। PTI की हुकूमतें जराइम को रोकने और लोगों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि एटमी जंग के खतरात में इजाफा हो रहा है, ताहम रूस एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल नहीं करेगा। सदर पुतिन ने क्रेमलिन में इंसानी हुकूक काउंसिल के एक इजलास के दौरान कहा कि वो यूक्रेन में एक तवील जंग देख रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल मजीद फौजी मुतहर्रिक करने की जरूरत महसूस नहीं करते। उन्होंने बताया कि सितंबर और अक्टूबर में 3 लाख रिजर्व फौजियों को बुलाने के बाद अब दूसरी बार उन्हें मुतहर्रिक करने की जरूरत नहीं है। और जनूबी अफ्रीका के मुल्क पीरो में पहली बार खातून ने मुल्क की सदारत का ओहदा संभाल लिया। पीरो में सदर कैस्टेलो को ओहदे से हटाने के बाद डीना बुलवार्ते सदर बन गई हैं। डीना बुलवार्ते इससे कबल मुल्क की नायब सदर के तौर पर काम कर रही थी। वो पीरो की तारीख की पहली खातून सदर हैं और 5 साल से भी कम अरसे में मुंतखब होने वाली छठी सदर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की बहन ने मुल्क में जारी मुजाहिरों पर हुकूमत के तशद्दुद की मजम्मत करते हुए पासदाराने इनकलाब से अवाम के खिलाफ हथियार इस्तेमाल न करने का मुतालबा किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर की बहन के फ्रांस में मुकीम बेटे महमूद मुराद खानी की तरफ से ट्विटर पर जारी करदा खत के मुताबिक बदरी हुसैनी ने लिखा है कि मैं अपने भाई के इक़दामात की मुखालफत करती हूँ और ईरान के जालिमाना कार्रवाइयों पर सोग मनाने वाली माओं से भी इजहार हमदर्दी करती हूँ। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में हमलों के मुजरिम उमर पातिक को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। बाली में 2002 के बम हमलों में 21 ममालिक के 200 से जायद अफराद हलाक हुए थे। इंडोनेशिया की अदालत ने मुल्जिम उमर पातिक को 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। इन पर बम बनाने का इल्जाम था। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में सॉलिड वेस्ट से एनर्जी पैदा करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नॉर्वेजन कंपनी ने इस मंसूबे पर दिलचस्पी जाहिर करते हुए रोजाना 1250 टन सॉलिड वेस्ट से 55 मेगावाट बिजली पैदा करने की पेशकश की और इब्तदाई तौर पर $250 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि सॉलिड वेस्ट से हासिल होने वाली बिजली सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सनतों को फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं, जबकि नॉर्वे और जर्मनी दीगर ममालिक से आने वाले सरमायाकारों की भी मुआवनत करते हुए कारोबार का साजगार माहौल फराहम करेंगे। गवादर के 2 अहम मंसूबे JCC इजलास में पेश करने की फेडरल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गवादर क्रिकेट स्टेडियम तामीर के लिए PCB से भी राबता किया है। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो की सदारत में GDA गवर्निंग बॉडी का इजलास कोयटा में हुआ। इजलास में गवादर गवर्नेंस मॉडल, वाटर पॉलिसी, सरबंदर और पशुकान जेटी के लिए PC1 की मंजूरी दी गई। नाज़रीन, ठट्टा की साहिली पट्टी पर बारिश और समंदरी तूफ़ान के सबब तबाह होने वाली सड़कों की तामीर का काम तेजी से जारी है। साहिली पट्टी पर 21 करोड़ रुपए से मुकम्मल होने वाली 3 सड़कों का इफ्तिताह कर दिया गया है। मजीद तफसील जानते अपने नुमाइंदा मिर्जा हसन बेग से। जी हसन, बताइएगा। बरसात और समंदरी तूफानी के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, यहाँ की सड़कों को और गांव गोटों को जाने वाले तमाम रास्ते जो टूट का शिकार हो गए थे। रोडें जितनी भी जो टूट का शिकार हो गई थी, केटी बंदर से कराची तक, केटी बंदर से ठट्ठा और दूसरे इलाकों को जाने वाली रोडें बिल्कुल ज़रियाब आ चुकी थी। साहिल इलाके की तमाम सड़कें जो है वो अब तामीर के मरहले में काफ़ी तामीर हो चुकी हैं। आज भी 3 सड़कों का अफ्ताह हो रहा है जो छोटे छोटे गांवों को मेन रोड से मिलाएंगी। इन सब तमाम चीज़ों को बनाने के लिए यहाँ के MP हाजी अली हसन जरदारी साहब ने एक सिंध हुकूमत को महंगा प्रोजेक्ट दिया, जिसमें सड़कों की तामीर का पूरी लागत लिखी गई थी। हुकूमत सिंध की तरफ से प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। काम करते रहेंगे। इन लोगों ने हिसाब नहीं किया, क्या हिसाब करना है इन लोगों से। ये 3 सड़कें जो है तकरीबन 21.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हैं। इसके अलावा कुछ सड़कों का काम मंजूर हो गया, वो भी जल्द शुरू की जाएंगी। हसन, आप इस हवाले से बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, PTV अकेडमी इस्लामाबाद में ऑफिस के हवाले से 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद इदारे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। PTV की इंतजामिया अपने दफातर और प्रोफेशनल्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस सिलसिले में दफातर के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने और मुलाजमीन की सलाहियतों को निखारने के लिए NITB के ताउन से PTV अकेडमी इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ऑफिस तरबियती वर्कशॉप हुई। सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए PTV अकेडमी के डायरेक्टर सैफुल्लाह शाहिद और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि ऑफिस से दफ्तरी काम में आसानी और तेजी आएगी।
पहले ए लेवल पे है, उसके बाद बी लेवल, फिर सी लेवल। तो जब सी लेवल तक ही हो जाएगी फिर तो समझ लें कि एक्चुअली वो लफ्ज़ पूरा हो जाएगा पेपरलेस एनवायरनमेंट वाला। ये टीम वर्क है, सारे मिलके करेंगे। जिसको नहीं आता दूसरे से, हमने सीखा है, एक दूसरे से सीखा है। ये मोहब्बत है सबकी। जिसके पास गए कि यार ये क्या चीज़, उसने कहा नहीं इस तरह नहीं इस तरह, हम लोगों ने तो यहाँ कर सीखा है। बदलते वक्त के तकाजे हैं, एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, चीज़ों ने आगे चलना है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये दिस वाज द नीड ऑफ टाइम। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो ताकि एवरीबॉडी शुड बी कैपेबल इनफ टू डू इट एट हिज ओन। ई ऑफिस इज़ लाइक अ मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स, इसके साथ आप रहेंगे, टच रहेंगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। कोर्स के शुरका ने तरबियती वर्कशॉप के इनाकात को सराहते हुए कहा कि इससे उनकी सलाहियतों में इजाफा होगा। ये जो ई ऑफिस की ट्रेनिंग हुई है ये बड़ी हेल्पफुल साबित हुई है। बहुत शुक्रगुजार हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा हमारे ऑफिस वर्क में। थोड़ी शुरू में रिलक्टेंसी होती है, लेकिन जब हम यूज टू हो जाएंगे इंशाल्लाह तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तकरीब के आखिर में कोर्स के शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। पीटीवी के दूसरे मराकज से वाबस्ता प्रोफेशनल्स ने ऑनलाइन तरबियती कोर्स में शिरकत की। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान को अपने बुलंदोबाला पहाड़ों के बाइस खुसूसी अहमियत हासिल है। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 में से 5 गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ हैं। मुकामी आबादी को इन पहाड़ों से खुसूसी अंसर लगाव है। इसी से मुतालिक स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम की रिपोर्ट मुलाहिज़ा करते हैं। मुल्क भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पहाड़ों के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान को खास अहमियत हासिल है। दुनिया भर में बुलंद तरीन शुमार किए जाने वाले 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 गिलगित बल्तिस्तान और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 समेत 4 बुलंद चोटियां बल्तिस्तान के जिला शिगर में वाक़ हैं। ये बुलंद चोटियां साल भर दुनिया के कोपेमाऊ और मुहिम जूं की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। इन्हीं पहाड़ों की सरजमीन बल्तिस्तान ने निसार हुसैन सतपारा, हसन सतपारा और मोहम्मद अली सतपारा जैसे अजीम कोहपेमाओं को जन्म दिया, जिन्होंने उम्र भर इन्हीं पहाड़ों से रिश्ता जोड़े रखा और बाद में इन्हीं पहाड़ों को हमेशा हमेशा के लिए अपना मस्कन बना लिया। लिटिल करीम का इन्हीं पहाड़ों से जुड़े रिश्ते व नाते के बाइस उन्होंने आलमी सतह पर शोहरत हासिल की। अब उनकी दूसरी और तीसरी पुश्त भी इन्हीं पहाड़ों से ताल्लुक को मकसद हयात बनाए हुए हैं। मैं मशहूर कोहपेमा लिटिल करीम की पोती हूँ और मैंने इसी साल 2022 में ही 6400 मीटर खुसुरगम पीक 28 जुलाई को सबमिट की है। पहले मेरे वालिद साहब लिटिल करीम इस शोबे से वाबस्ता रहा है। उन्होंने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाया है। अभी मैं भी इस शोबे से वाबस्ता हूँ और मेरी बेटियां भी इस शोबे से वाबस्ता है। कोहपेमा ही नहीं बल्कि खित्ता गिलगित बल्तिस्तान का एक एक फर्द इन्हीं पहाड़ों से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है। खित्ते में लोगों के इन पहाड़ों से कायम रिश्ते को और मजबूत करने के लिए हुकूमत ने माउंटेनियरिंग स्कूल के क़याम की मंजूरी दी है। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदो। FC बलोचिस्तान की जानिब से सिविल इंतजामिया के इश्तराक से के इलाके थर्जी में फ्री मेडिकल कैंप का इन्नकाद किया गया है। मेडिकल कैंप में कुल 244 मकामी मरीजों का मुआयना किया गया, जिनमें 96 मर्द, 101 बच्चे और 47 खवातीन शामिल थीं। खवातीन मरीजों को चेक करने के लिए फीमेल स्टाफ भी कैंप में मौजूद थे। तमाम मरीजों को तिब्बी मुआयने के साथ मुफ्त अद्वियात, ब्लड टेस्ट और माइनर ऑपरेशन की सहूलियात भी फराहम की गईं। मौसम सरमा में जहां खुश्क मेवाजात और मछली की मांग में इजाफा हो जाता है, वहीं देहात और कस्बों में गुड़ और शक्कर की तैयारी का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाता है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ गुड़ की मांग में भी इजाफा हो जाता है। गुड़ की तैयारी का अहवाल बता रहे हैं एपिसोड से राना कैसर हयात। जी कैसर हयात, गन्ने का रस किन मराहल से गुजरकर गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है? बिल्कुल जिस तरह के मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, जिसमें सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली और खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो जाता है। वहीं पर रवायती तरीके से तैयार किया गया देसी गुड़ और शक्कर में भी लोग ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। मैं इस वक्त पसरूर के करीबी गांव में मौजूद हूं, जहां पर देसी गुड़ और शक्कर की तैयारी का सिलसिला जारी है। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि पहले गन्ने को काट कर साफ़ करते हुए इससे रस निकाला जाता है, जिसको बाद में आग पर इस वक्त तक पकाया जाता है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। एक मखसूस हद तक इसको पकाने के बाद लकड़ी से बने टब में डाल दिया जाता है, जिसे ठंडा करने के बाद इसकी शक्कर और गुड़ तैयार कर लिया जाता है। अगर इसमें खुश्क मेवाजात और देसी घी शामिल कर लिया जाए तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है।
بہت شکریہ کیسر آپ کا. اور لاہور میں خزاں کے موسم میں بھی پھول کھل اٹھے ہیں. جیلانی پارک میں 100 سے زائد اقسام کے گل داودی خزاں رت میں بھی موسم بہار کا نظارہ پیش کر رہے تھے. شہریوں کی بڑی تعداد نے پھولوں کا حسن دیکھنے کے لیے پارک کا رخ کیا. اس کی تفصیل جانتے ہیں وردہ سلیم سے. ماحول کو دلکش اور معطر کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن اور رویوں پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں. پھولوں کے دیدہ زیب رنگ قدرت کے رنائیوں کی داستان بیان کرتے ہیں. یقین نہ ہو تو لاہور کے جیلانی پارک کا رخ کریں جہاں گل داودی کی نمائش اور موسم سرما کے رنگ برنگے پھول آپ کا استقبال کریں گے. گل داودی کی نمائش میں پھولوں کو اس خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے کہ آپ کے دل کا موسم بھی سہانا ہو جائے. کوئی گل داودی کی ایسی کوئی قسم نہیں ہے جو یہاں پہ ہم نے ڈسپلے نہ کی ہو. فیملیز آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, تو آپ کے توسط سے میں پورے لاہور کے لوگوں کو, فیملیز کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں. اور یہ جو رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں, ہمارے جو گارڈنر ہیں, ہمارے جو مالی ہیں, جو پی ایچ اے نے کام کیا ہے, ہماری آرگنائزیشن نے کام کیا ہے, آئیں اس کو اپریشیٹ کریں. گل داودی جو پھول ہے اس کو پورا سال لگتا ہے گرو کرنے میں. اس دفعہ یہ کہ سیلفی بوتھس بہت زیادہ دیے ہیں, ہر ایک کو تصویر اتارنے کا شوق ہے تو ان کو میکسیمم اپرچونیٹی مل گئی. بینچز رکھ دیے, ساتھ پھول, اور ایک وہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا پھولوں کی جھرمٹ میں بیٹھنا, تو اٹ واز جسٹ لائک دیٹ. نمائش میں گل داودی کی 100 سے زیادہ اقسام رکھی گئی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جوک در جوک آ رہے ہیں. بہت اچھی لگی ہے نمائش. ہم تقریباً ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اسٹارٹنگ سے ہی, تو بچوں کو لے کے آتے ہیں, کافی انجوائے کرتے ہیں. فیملی کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے. کافی زیادہ نیچر کے حسین مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. ڈفرینٹ پھول ہیں, 100 سے اباو کلرز ہیں. قدرت کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, آنا چاہیے سب کو یہ دیکھنے کے لیے. پارک اینڈ ہارٹی کلچر کی طرف سے موسم سرما میں گل داودی کی نمائش کا انعقاد اب ایک سالانہ ایونٹ بن چکا ہے جس کا اہل لاہور شدت سے انتظار کرتے ہیں. گل داودی کی یہ نمائش 10 دسمبر تک جاری رہے گی. وردہ سلیم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. ناظرین, اردو کے نامور رومانوی شاعر ناصر کاظمی کا 97واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. ناصر کاظمی کی پیدائش 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں ہوئی. انہوں نے اپنی تخلیقی زندگی کی ابتدا 13 برس کی عمر میں کی اور اس زمانے کے معروف شاعر اختر شیرانی سے متاثر ہو کر رومانوی نظمیں اور پھر غزلیں کہیں. قیام پاکستان کے بعد ان کے اشعار کی مہک گوشے گوشے میں پھیل گئی اور پاکستان کو ناصر کاظمی کے روپ میں ایک نیا شاعر نصیب ہوا. ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ برق نے 1952 میں شائع ہوا. اس کے علاوہ دیوانہ, پہلی بارش, نشاط خواب, سرخی چھایا, خشک چشمے کے کنارے اور ان کے دیوان بھی دیگر مجموعوں میں شامل ہے. حضرات السلام علیکم. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور بین الاقوامی دن کے حوالے سے جو انسداد کرپشن کے حوالے سے ہے. اور ہم سب یہ مانتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس ہال میں کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو کرپشن سے خدا نخواستہ محبت کرتا ہو. ہم سب مانتے ہیں کہ یہ معاشرے کا ناسور ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ یہ انتہائی بری چیز ہے. ہم سب یہ مانتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ جب ایک شخص کرپشن میں انوالو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق سلب کر رہا ہوتا ہے, وہ انکروچ کر رہا ہوتا ہے آن ادرز رائٹس اینڈ پریولیجز. تو اس کو کلا کما کرنا انتہائی ضروری ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس بات پہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے سے 10 روپے اس کا کھائے گا تو قیامت والے دن اس ایک شخص کا گریبان ایک شخص کا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہوگا. لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص قومی دولت میں سے 10 روپے کھائے گا اور اس قوم میں اگر 22 کروڑ لوگ ہیں تو قیامت والے دن 22 کروڑ لوگوں کا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہوگا. تو جیسے جیسے ذمہ داری آپ کی بڑھتی ہے, ایز یو گیٹ ہائر آن دا رینکس, آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری کا بوجھ بڑھتا ہے تو اس کی جواب دہی بھی بڑھتی ہے. اور اللہ کے ہاں
سب سے پہلے انسان جواب دہ ہے, اس کے بعد اپنے قانون کو اور عوام کو انسان جواب دہ ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جہاں معاشرے کی بات کرتے ہیں, معاشرے میں کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہاں اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نظام احتساب کا صحیح نہ ہونا ترویج دیتا ہے یا کرپشن کو نہ روکنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ بات مسلمہ ہے دنیا کے تمام معاشروں میں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کسی عام سڑک پہ گاڑی ٹیڑھی میڑھی چلا رہا ہے, انڈیکیٹرز کا خیال نہیں کر رہا, دوسروں کے رائٹس کا خیال نہیں کر رہا, سڈن ٹرنز لے رہا ہے, جیسے ہی وہ موٹر وے پہ جاتا ہے وہی شخص بہتر گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ وہ شخص خراب تھا یا نظام کی کمی تھی؟ وہی لوگ جو امریکہ میں اور باقی جگہوں پہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, جب پاکستان میں آتے ہیں تو مختلف طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. تو نظام کی بہتری جو ہے وہ مقصد ہے. لیکن کرپشن کے ہم خلاف بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کرپشن کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا, تعلیم میں کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ہم جو کہنے والے ہیں نا, ہماری نظر بھی اور چیزوں پہ اور خرابیوں پہ زیادہ ہوتی ہے, اور جو لوگ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے یا لوگوں کو اعتماد دینے کی بجائے ہم اسی طرف زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب 2013 سے 18 میں میرے ناتواں کندھوں پہ ایک وفاقی وزارت تعلیم کا بوجھ تھا. میں پہلے مملکت برائے تعلیم, بعد میں وفاقی وزیر تعلیم تھا. تو ہم نے جو نیا نصاب کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو دیا, کیونکہ مشرف کے دور میں جو نصاب بنا تھا وہ متنازع ہو گیا تھا, عوام نے اس کو بالکل قبول نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ عوام, جو لوگ کہتے ہیں کہ عوام گونگی بہری ہے, عوام کھڑی ہو جاتی ہے اور جو دیکھتی ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہو رہا ہے, اور اس میں عوام کے پیپل ہیڈ ریزنز ٹو بلیو کہ اس میں کیا کیا خرابیاں کی جا رہی ہیں. تو بہرحال وہ تو عوام نے رد کر دیا تھا وہ نصاب. تو جب 2017 میں ہم نے نیا نصاب دیا, اس میں جو فنڈامنٹل چینج کی تھی ہم نے, وہ یہ تھی کہ نصاب کو نالج انٹینسٹی سے نکال کے ویلیو انٹینسو بنایا تھا کہ آپ کا فوکس بچے کو لائف لانگ لرنر بنانا ہے, کتاب پڑھنا اور علم سیکھنے کا مستقل عادی بنانا ہے. یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ دنیا کے تمام علوم آپ اس کو صرف سکول ڈیز میں اس کے اوپر لاد دیں گے اور بستے بڑے کر کے اور بڑی کتابیں کر کے شاید آپ بچے کو بہتر پروڈکٹ تیار کر دیں گے. نے کہا تھا کہ اس کا کردار اچھا کیجئے. اور آج بھی جب اس کے لیے بہت میٹیکولسلی بلڈ کیا تھا گریجولی کہ کنڈر گارڈن سے لے کے اور 12ویں جماعت تک کیسے چیزیں آگے چلنی ہیں, کردار سازی, ویلیوز, مورلز, ایتھکس, انٹیگریٹی, ان کو ترویج دینا ہے. آج بھی وائس چانسلر صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں. ایز چانسلر جب مجھے یہ ذمہ داری ملی, تمام وائس چانسلرز کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کنسورشیم بنایا. کس چیز پہ؟ کریکٹر بلڈنگ پہ. اور اس بات پہ غور و فکر شروع کیا کہ ہم کس طرح سے بہتر انداز میں اپنے طلباء کی کردار سازی کر سکتے ہیں, ان کو اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں کہ دائمی کامیابی صرف سچائی میں ہے. گورنر پنجاب علی الرحمان کا اینٹی کرپشن ڈے کی تقریب سے خطاب. کہا کرپشن کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے, کرپشن کرنے والے دوسروں کے حقوق سلب کر رہا ہوتا ہے. ناظرین, برطانوی کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوک اس وقت ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. Sorry, can we just keep... I can't understand when everyone's making noise in the background. We warmly welcome you at the land of mangroves, at the land of sands. My question is, there is a little bit tough condition of Multan, then around Pindi. Also it's about weather condition, about the pitch situation. What do you feel when you are facing Pakistan after losing a match? How do we feel against facing Pakistan in this game compared to the last one? Is that, yeah. Yeah, well, as I said before, it's obviously it's always going to be a challenge facing Pakistan in their home conditions. But I think the beauty of this team and squad is we really try and focus around ourselves rather than too much against the opposition. But
yeah, we'll go out with the same game plan, same mindset over the next 5 days, and hopefully everything we do can, contribute to us, leaving here 2-0 up. Is there a shortened game likely? Is there a preference going back towards chasing, less time to take 20 wickets? I think it is a tough one to sort of go with, but I think with whatever we do, whether we bat or bowl first, I think we'll still be implementing the same style of cricket in which we approach. If we do bat first, we'll obviously be trying to press the run rate and then trying to move the game forward as fast as we possibly can. And on the flip side, if we do bowl first, I don't think you'll be seeing too much difference in the way that we approached last Test match with the ball. So, I don't know, hopefully Baba wins the toss, and I don't know, it's very difficult out here, but as it is in subcontinent, genuinely you win the toss and you do have a bat, but we'll have to wait and see. बरतानवी क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और नाज़रीन, अब खबरनामे में शामिल करेंगे मौसम की बदलती रुतों के हवाले से खबरें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाके धुंध के ज़ेर असर रहे। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लै -10, स्कर्दू -7, गोपस -4, गिलगित और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।